Ignited Minds Tutorials has uploaded a video covering the topic of outcomes of democracy for CBSE SST. The video explains the pros and cons of democratic and non-democratic forms of government. This informative resource provides students with a better understanding of the outcomes of democracy in society. By delving into critical issues such as human rights, transparency, accountability, and stability, the video helps students develop critical thinking skills and become more informed citizens. With real-world examples and clear explanations, Ignited Minds Tutorials has given students an in-depth look at the complex topic of democracy and its outcomes. Okay, people, we will start with outcomes of democracy. ठीक है? ठीक है? छोटा सा चैप्टर है भाई साहब, outcomes of democracy. As we begin to wind up our tour of democracy, ठीक है? हमारा जो democracy का tour है, wind up our tour, it is time to move beyond our discussion to specific themes and ask a general set of questions. ठीक है? General set of questions क्या क्या हैं भाई साहब आपके? ठीक है? What does democracy do? Democracy करता क्या है? What outcomes can be reasonably expected out of democracy? ठीक है? Government of the people, by the people, for the people है. Does democracy fulfill all these expectations in real life? क्या डेमोक्रेसी हमारे सारे समस्याओं का समाधान है? शायद है, शायद कुछ समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी इतनी स्मूथली नहीं चल पाती है. ठीक है? डेमोक्रेसी, देखिए, कोई अगर एक इंसान होगा जो रूलर होगा, वो आज डिसाइड करेगा सबको वही करना पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में तमाम लोग जुड़े हैं, तो इसीलिए आपके किसी भी चीज का इंप्लीमेंटेशन बहुत स्लो होगा. इट विल बी वेरी स्लो. ठीक है? सो डेमोक्रेसी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में नहीं हो पाता है. ठीक है? डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव. डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, जैसे हिटलर एक डिक्टेटर था, स्टालिन एक डिक्टेटर था. ठीक है? सो इट इज बेटर, प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. तो डेमोक्रेसी सारे सिटीजन्स को बराबर हिसाब से ही तौलती है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्ड्स टू कास्ट, जेंडर, कलर और क्रीड. ठीक है? सो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. ठीक है? ओके, दैट इज गुड. ठीक है? enhances the dignity of the individual. So every individual in democracy is considered to be of equal caliber. ठीक है? सबको इक्वालिटी पे रखती है डेमोक्रेसी. improves the quality of decision making. So decision making आपका भाई साहब improve होता है इससे. ठीक है? ये तो सारे advantages हैं. provides a method to resolve conflicts. जितने भी आपके conflicts हैं, जितने भी आपके मुद्दे ऐसे हैं जिन पे भाई साहब मतभेद है, उसको डेमोक्रेसी से हम सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन बेसिकली सॉल्व इट बाय डेमोक्रेसी. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. जितने भी आपके मिस्टेक्स होंगे उसको भी करेक्ट करने के रूम्स देता है. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. तो प्रिंसिपल वाइज तो डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिस वाइज इसमें चैलेंजेस हैं. ठीक है? प्रैक्टिस वाइज देयर आर चैलेंजेस. मतलब हम डेमोक्रेसी को उतने स्मूथली कैरी आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है? देयर आर सर्टेन चैलेंजेस. This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. Difficulty है भाई साहब. ठीक है? Do we prefer democracy only for moral reasons? क्या moral reasons के लिए हम democracy prefer करते हैं? Are there some prudential reasons to support democracy too? ठीक है? Prudential या rational reasons क्या है? Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic public. ठीक है? तो आपका almost more than 100 countries are either running pure democracy or some kind of democracy. ठीक है? or some kind of democracy. They have formal constitution. एक भाई साहब इनका संविधान होता है. They hold elections. They have parties and they guarantee rights of citizens. ठीक है? ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब. Democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. ठीक है? तो democracy जो तो एक दूसरे से काफी भिन्न है in terms of their social situation. Social situation क्या है, their economic achievements क्या हैं और उनके cultures क्या क्या हैं. ठीक है? Democracy can address all socio-economic and political problems. सारे जितने भी आपके socio-economic and political problems हैं, उनको हम democracy से निपट सकते हैं. We can basically sort it out with democracy. If some of our expectations are not met, we start bailing the idea of democracy. तो obviously जैसे ही हमारा कोई सामाजिक ढांचा या सेटअप है, उसका जो क्राइटेरिया वो मीटअप नहीं होता है, तो हम डेमोक्रेसी को दोष देने लगते हैं. ठीक है? We start doubting if we are living in a democracy. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. एक form of government ही तो है ये.
It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. तो citizens को क्या करना पड़ेगा? Advantage लेना पड़ेगा of these conditions और इन goals को भाई साहब achieve करना पड़ेगा, ठीक है? They have to achieve these goals. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. Democracy क्या है भाई साहब? Accountable है, रिस्पॉन्सिव है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है? अकाउंटेबल मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है? अगर गवर्नमेंट को हमने चुना है तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। रिस्पॉन्सिव, इसको पब्लिक के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है? पब्लिक के मुद्दों को इसको सुलझाना पड़ेगा। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लीगल गवर्नमेंट है, ठीक है? ओके, so in a democracy we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers. तो जितने भी लोग हैं उनको भाई साहब राइट रहेगा टू चूज देयर रूलर्स, ठीक है? चूज देयर रूलर्स. पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. पीपल विल कंट्रोल द रूलर्स ऑब्वियसली. whenever possible and necessary, citizens should also participate in decision making that affects them all. तो सारे सिटीजन्स को भाई साहब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है? विच अफेक्ट्स देम ऑल, सबको अफेक्ट करता है ये, ठीक है? द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी should be that it produces a government that is accountable to the citizens, ठीक है? तो एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है which is basically accountable to the citizens, मतलब रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन्स के लिए, ठीक है? Responsive to the needs and expectations of the citizens. So is the democratic government efficient? It is effective, ठीक है? Some people think that democracy produces less effective government. कुछ लोगों का यह मानना, कहना और जानना है कि डेमोक्रेसी जो है तो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है? इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है? नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को भाई साहब इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो लोग नॉन डेमोक्रेटिकल सेटअप में गवर्नमेंट को चला रहे हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि पब्लिक क्या सोच जान और समझ रही है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। नहीं सुधरेंगे ये भाई साहब। ओके, सो पीपल वी वर डूइंग यस्टरडे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में आपका जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जो होता है अकाउंटेबल, इट इज अकाउंटेबल मतलब आपने सरकार चुना, लेकिन सरकार चुनने के बाद आप सरकार को क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार को आपके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू यू, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिव, ठीक है, एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव मतलब जो रिस्पॉन्ड करे, ऐसे नहीं कि बस अब सरकार चुन के बैठा हुआ है कुछ कर नहीं रहा है। एंड लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब लीगल गवर्नमेंट, ठीक है? सो इट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव, ठीक है? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होता है, क्या इफेक्टिव होता है? देखो, एफिशिएंट और इफेक्टिव होना मतलब ताबड़तोड़ काम होना, जो डेमोक्रेसी का आज तक चैलेंज है, ठीक है? हाँ, काम क्या भाई हो सकता है अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, लेकिन ताबड़तोड़ काम नहीं होता। डेमोक्रेसी का जो सेटअप है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, आपको बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से गुजरना पड़ता है। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये एक चैलेंज है, ठीक है? डेमोक्रेसी का मेन चैलेंज है आपका द स्लोनेस और द टार्डीनेस इन द प्रोसेस, ठीक है? दैट इज वन मेजर चैलेंज। तो इसीलिए इफेक्टिव या एफिशिएंट थोड़ा सा कम है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है? इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं, जैसे चाइना वगैरह में नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है, कोई भी अगर उनको पॉलिसी लॉन्च करनी है ताबड़तोड़ लॉन्च करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है? कल से ये हो जाएगा, कल से परसों से ये हो जाएगा, बस खत्म, बात खत्म, कोई चैलेंज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं कर सकते आप जब भी कोई नया लॉ लाते हैं पहला तो वो पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए, फिर पार्लियामेंट में उसका क्वेश्चनिंग होगा, फिर भाई साहब लोग देखेंगे कि ये सही है या नहीं, तो काफ़ी सारे तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कुछ दिनों पहले अगर आप देखोगे हमारे रूलिंग पार्टी ने एक फार्मर्स का बिल पास किया था, ठीक है? और इस फार्मर्स के बिल में बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से करीबन 1 साल तक दिल्ली के रोड्स में प्रोटेस्ट चलता रहा, ठीक है? देयर वर प्रोटेस्ट इन द रोड्स ऑफ दिल्ली, और यहाँ पे भाई साहब आपका फार्मर्स बिल को प्रोटेस्ट चलता रहा और फाइनली गवर्नमेंट को इसको कैंसिल करना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू कैंसिल इट, ठीक है? सो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट बॉदर अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। तो कभी कभी आपको सरकार को ही इसको करना पड़ता है, सरकार को इसको करना पड़ेगा, ठीक है? सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेलिब्रेशन मतलब जो आपके टास्क होते हैं इस मिनिस्टर को, फिर उसके अंदर के, फिर उसके ऐसे टास्क जाते हैं,
ठीक है, मैंने तुमको कुछ बोला करने के लिए, तुम किसी और को बोलो, तुम ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ढीलापन किसी में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सरकार ने एक मिली जुली डिसीजन ले ली, उसके बाद जो मिनिस्टर होगा उस पर डिसीजन जाएगा, फिर वो जो ब्यूरोक्रेसी होगा उसको डिसीजन देगा, फिर वो आगे के ऑफिशियल्स को देगा। अभी इतने सारे लोग जब एक डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए होते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई तो ढीला पड़ेगा ही थोड़ा सा, ठीक है। तो तब जाकर भाई साहब आपके क्या होगा, लेथार्जी क्रिएट होती है, तो तब आपका क्या क्रिएट हो रहा है, मतलब बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस। इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब पूरा कल को सरकार को ये आया कि भाई साहब कल से ये रूल होगा, ऐसा नहीं हो सकता, यू हैव टू नेगोशिएट, ठीक है। हाँ, आपके फॉर्मेट में ये सही है और ये गलत है, तो ऐसे नेगोशिएशंस होते हैं, ओके। देयर इज हेट बट देयर इज बिगर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपके बिगर प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल 1 कॉस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, एग्जाम्पल 2 हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी, ओके। तो कॉस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इमेजिन, ठीक है। अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, फटाफट डिसीजंस जो लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। तो कोई गवर्नमेंट है जो ताबड़तोड़ डिसीजंस ले रही है, लेकिन वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल, ठीक है, सबके लिए नहीं है वो, ठीक है, और लॉट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फीलिंग लेफ्ट आउट और इग्नोर्ड और मे बी कंप्लीटली डिमोनिश्ड, ठीक है। So, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. तो इस गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या होगा, आगे चलकर लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, उनका इनकन्वीनियंस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी गवर्नमेंट की बात करें जो सुलझे हुए तरीके से डिसीजंस ले रही है, ठीक है, और मतलब सब लोग इसमें एग्री हो रहे हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में वो बिल पास होगा, सब लोगों का साइन आएगा, तब जाकर वो लॉ बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो ताबड़तोड़ तो काम नहीं हो सकता, ठीक है, और उसके इंप्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा, लेकिन वो सबके लिए ना बोले 95% के लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ओके। So in contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत सारे और भी प्रोसीजर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे बिफोर दे अराइव एट अ डिसीजन, ठीक है, बिफोर दे अराइव एट अ डिसीजन। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर्स, इट्स डिसीजंस में बी बोथ एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिसीजंस में बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव भी होंगे और मोर एक्सेप्टेबल भी होंगे, ठीक है। दे विल बी मोर इफेक्टिव एज वेल एज। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम द डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट। समझ में आ रहा है? देखो, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। आपका एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे डिसीजंस बहुत ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं लिया जा रहा है, सबको भाई साहब कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो रूल है वही रूल है, वो ताबड़तोड़ डिसीजन हो जाएगा। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे सबको कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, बिल या इश्यू पार्लियामेंट में पहले रेज होगा, उसके बाद उस पर लोगों का साइन होगा, तब जाकर वो लॉ बनेगा, फिर जाकर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक में लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, एक में लोगों को साथ में लेकर चला जा रहा है। यहां पे इसका हर्जाना क्या है भाई साहब, टाइम। इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है और इसमें काफी सारा टाइम लग रहा है। सो दैट इज बेसिकली, तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है सो द कॉस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, दैट डेमोक्रेसी पेस इज परहैप्स वर्थ इट। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो टाइम का हर्जाना आपको देना पड़ा, टाइम इसका फीस है, ठीक है। आपके डिसीजंस डिलेड होने का फीस क्या है, टाइम, ठीक है। दैट इज वर्थ इट बिकॉज इसमें मैक्सिमम लोगों का हित होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, यहां पे अगर गवर्नमेंट, समझ लो एक गवर्नमेंट है, उसके लीडर ने कल बोला कि भाई साहब हमको ये लॉ इंप्लीमेंट करना है, बस ताबड़तोड़ हो गया। अभी उस लॉ में किसको एडवांटेज है, किसको डिसएडवांटेज है, किसको मेरिट है, किसको डिमेरिट है, ये सब नहीं सोचा गया, और कल ही ये लॉ बन गया भाई साहब, ठीक है। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, लॉ बनाने के पहले पार्लियामेंट में वो मुद्दा डिस्कस होगा, फिर भाई साहब लोगों के फिर एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर पार्लियामेंट में वो पास होगा, ठीक है। अगर उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है तब जाकर वो बनता है आपका लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट के सारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कौन देगा, लोगों के चुने हुए उम्मीदवार, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर गोइंग टू गिव दिस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये चुने हुए उम्मीदवार ही बेसिकली वोट करेंगे, ठीक है। सो अगर ये चुने हुए उम्मीदवारों ने वोट नहीं किया तो वो लॉ नहीं पास होगा। तो लॉ को, किसी बिल को लॉ बनाना एक बहुत टीडियस प्रोसेस है इन पार्लियामेंट, बहुत टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो टाइम लगने वाला है, तो लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको वोट दिया है, इसका मतलब इंडियन पब्लिक ने इसको वोट दिया है, क्योंकि इंडियन पब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने,
उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको सहमति दी है, तो इसका मतलब इंडियन पब्लिक ने इसको सहमति दी है ना। तो इसके लिए ये डिले होगा प्रोसेस, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली इंडियन पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। सो यस, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी फेस, बट इट इज परहैप्स वर्थ इट बिकॉज दैट विल इंश्योर द बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। इसमें बेनिफिट हो या नहीं मालूम है, लेकिन इसमें तो बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि इट इज इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अभी ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होती है, देखो ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं वो सबको मालूम हो, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द डिसीजन मेकिंग दैट विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट, ठीक है। द सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हर एक सिटीजन का राइट है टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे समझ लो कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई हाईवे बन रहा है, उस हाईवे में कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय हुए हैं, कितना उसको पगार जा रहा है, कितना उसको पेमेंट हो रहा है, क्या क्या मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, ये सब सारी तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। आरटीआई हो गया है आज की तारीख में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अगर आपने आरटीआई फॉर्म भरा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आपको जवाब देने के लिए सारी चीज़ों को तैयार करके देना पड़ेगा। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव द राइट टू नो all things about all projects which the government is undertaking except for defense। डिफेंस हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस का इन्फॉर्मेशन इधर उधर पास हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर डिफेंस ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एवरी पर्सन हैज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई के तहत आप फॉर्म भर के उस इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। द सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। द फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका भाई साहब आज हमको ये करना है तो करना है, ठीक है, कोई तुमको जवाबदारी नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तुम्हारी, ठीक है। सो इसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी, क्यों हम बताएं क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है, नॉन ट्रांसपेरेंसी जो है आपके नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में होगा। Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people, ठीक है। फॉलो कर रहा है प्रोसीजर्स को और पीपल के लिए अकाउंटेबल भी है, ठीक है। We can also expect that the democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in the decision making whenever they think fit, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट डेवलप्स मैकेनिज्म्स फॉर सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, क्या क्या गवर्नमेंट ने काम किया है सिटीजंस देख सकते हैं। और आप जब इलेक्शन कर रहे हैं तब इलेक्शंस में ही आपका निर्वाचन हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को अगर सिटीजंस ने देखा कि गवर्नमेंट ने काम किया है तो उस गवर्नमेंट को वो सरकार को चुनेंगे, ठीक है। और क्या है भाई साहब, मैकेनिज्म्स फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे थिंक फिट, तो इस पूरे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। आपके भाई साहब रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। आपके 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। देखो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो एक तो भाई साहब आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लोकसभा में हमारे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इन पे भाई साहब इलेक्शन होता है। एक होता है भाई साहब आपका स्टेट लेवल पे इलेक्शंस, ठीक है, और तीसरा होता है आपका विलेज या पंचायत लेवल पे इलेक्शंस। तो आपका फेडरल 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तब आपका इलेक्शन हो गया, ओके। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, फ्री और फेयर हो, इसलिए भाई साहब इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन इज नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, ये एक 3 पार्टी का मेंबर होता है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ 3 पार्टी मेंबर, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। सो गवर्नमेंट कैन नॉट क्वेश्चन द इलेक्शन कमीशन, नीदर कैन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरवेंशन के बिना इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इज बेसिकली एन ऑटोनोमस बॉडी, मतलब अपने को फ्रीली ये काम कर सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब ऑटोनोमस बॉडी। ये आपका इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, टाइम टेबल बनाएगा, ठीक है, सारे इलेक्शंस के लिए टाइम टेबल बनाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्माण करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कब किस किस दिन पे इलेक्शंस होंगे ये होता है, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए पहले तो हमारे बैलेट बॉक्सेस होते थे, नहीं पहले हमारे होते थे बैलेट बॉक्सेस, उस पे भाई साहब आप अपने इलेक्शन, आज की तारीख में क्या हो गया भाई साहब
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप अपने वोट्स को कास्ट कर सकते हैं, ताबड़तोड़ वहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शंस जो हैं वो हमारे डेमोक्रेसी का पहला स्टेप है, एंड दे शुड बी रेगुलर, दे शुड बी फ्री। रेगुलर मतलब देखिए आपके 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। एक होता है भाई साहब आपका क्या, जो आपका रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं, ठीक है। तो आपके रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं, जैसे लोकसभा में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये रेगुलर हो गए। एक होता है आपका मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस अगर सरकार गिर जाती है, ठीक है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, सरकार एक कोएलिशन गवर्नमेंट था, आपने देखा कुछ दिनों पहले जैसे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, एक शिवसेना जो तो अलग हो गई, तो जो पहला मेजॉरिटी पार्टी था वो वैसे अब सरकार गिर गई, तो नया सरकार का गठन हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस तब होती है जब किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, सरकार गिर गई है, कोएलिशन गवर्नमेंट टूट गया है, तो बीच में भी 5 साल पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका रेगुलर इलेक्शंस विच आर कंडक्टेड एवरी 5 years, then we have midterm elections in case of a coalition government fails to gain support of absolute majority, then it is calling for midterm elections. और तीसरा होता है भाई साहब आपका बाई इलेक्शंस। एनीबडी नोज व्हाट इज बाई इलेक्शंस? ये 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, ये रेगुलर, ये मिड टर्म अगर सरकार गिर जाए तो, और बाई इलेक्शंस अगर किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाती है, कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर जो हैं उनकी डेथ हो जाती है या वो सडनली रिजाइन कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, बाई इलेक्शंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन गोवा वी हैड मनोहर पारिकर, ही वाज बेसिकली द चीफ मिनिस्टर, वंस ही एक्सपायर्ड देयर वाज बाई इलेक्शंस दैट वर कंडक्टेड, ठीक है। सो उस पोजीशन को फिल करने के लिए बाई इलेक्शंस होते हैं। ये 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, और इन तीनों टाइप के इलेक्शंस को कौन सुपरवाइज करता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर का ही बॉडी है। इसका गठन हुआ था बहुत पहले, इसका गठन हुआ था भाई साहब अंडर आर्टिकल 324 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अंडर आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। इट इज अ 3 मेंबर्ड बॉडी। इनके भाई साहब जो चीफ होते हैं उनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन, ही वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, ही वाज द फर्स्ट। तो ये आपके IAS ऑफिसर्स होते हैं, दीज आर बेसिकली इंडियन सिविल सर्विस, आपको क्रैक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अपॉइंटेड। इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग भाई साहब होती है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये फ्री बॉडी होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन क्या इनकी टीम होती है? नहीं, ये 3 जन का ही मेंबर है। तो इनकी टीम कैसे बनेगी? इनकी टीम बनती है तो जैसे इलेक्शन आपका डिसाइड हो गया तो ये जैसे समझ लो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, अभी पोस्ट ऑफिस में उतना काम का लोड नहीं रहता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, यहाँ पे नोटिस भेजेगी कि हमको 15 लोग चाहिए इस दिन पे आपके ऑफिस से, ठीक है। तो समझ लो ये 15 लोग जो पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, दे विल बी वर्किंग ऑन इलेक्शन ड्यूटी फॉर 5 days इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये 15 लोग उन 5 दिनों के लिए भाई साहब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे रहेंगे। एक चीज और है, तो ये 5 दिनों के लिए ये 15 लोगों पर गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं रहेगी, इन 15 लोगों पर क्या ड्यूटी रहेगी भाई साहब? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी रहेगी। दे विल बी वर्किंग अंडर इलेक्शन कमीशन, दे विल नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो फियर एंड ओके। अभी कैसे होता है भाई साहब इलेक्शन में भाई साहब क्या होगा, एक पार्टी जो है तो अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देगी, फिर उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नॉमिनेशन फॉर्म कौन स्क्रूटिनाइज करेगा? इलेक्शन कमीशन। दैट इज द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। सो बहुत बड़ा एक सेटअप है। इनका खुद का कोई टीम नहीं है, ये ऐसे भाई साहब जैसे कि स्कूल में नोटिस जाएगा कि भाई हमको 15 टीचर्स चाहिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनको ऊपर ड्यूटी लग जाएगी, इलेक्शन ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। तो जितने भी आप देखोगे जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है उस पर खुल्लम खुल्ला बहस होती है, ठीक है। कोई उसके प्रो में बोल रहा है, कोई उसके कॉन दिखा रहा है, कोई उसके एडवांटेजेस दिखा रहा है, कोई उसके डिसएडवांटेजेस दिखा रहा है, तो खुल्लम खुल्ला बहस हो सकती है मेजर पॉलिसी डिसीजंस पे, ठीक है। सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला आपको RTI, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कितना इस प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ है, किस कॉन्ट्रैक्टर को किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये तमाम आपकी इंक्वायरीज हो सकती हैं, ठीक है। एंड इट्स फंक्शनिंग, आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ एक RTI फॉर्म भरना पड़ता है।
You don't have to be a very powerful person in order to conduct this. Democracies had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा सक्सेस हुआ है, ठीक है, in setting up regular and free elections, ठीक है, and in setting up conditions for open public debate. तो open public debate अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या न्यूज़ चैनल्स में आप देखते ही हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे होती है, ठीक है. Most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone in subjecting every decision to public debate. बहुत सारी डेमोक्रेसी में तानाशाही होती है, ठीक है. कहने के लिए तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन पब्लिक डिबेट नहीं होगा. कभी किसी मिडिल ईस्ट कंट्री का न्यूज़ चैनल देख लो, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं है, एक तरफा न्यूज़ है. ये हुआ, गवर्नमेंट ने ये किया, बस एक तरफा न्यूज़ है. बाकी क्यों किया, कैसे किया, कोई हॉट डिबेट नहीं है. कुछ ऑपोजिशन के पार्टी के मेंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सो मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं उन्हीं में झोल होता है. फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है. इलेक्शंस पहला स्टेप है जहाँ पे फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है. फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप पहले स्टेप में ही फेल हो रहे हैं, ठीक है. दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. सारे डिसीजन को हम पब्लिक डिबेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. Democratic governments do not have very good record when it comes to sharing information with citizens. कभी कभी भाई साहब नहीं करते हैं. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy that it is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. तो करप्शन फ्री होने के लिए ही आपका RTI एक्ट है, ठीक है. बहुत लेवल पे अलग अलग तरीकों से करप्शन हो सकता है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में देखा था ऐसे ही, ठीक है. I am not trying to name anybody out here, neither any place, but somehow I got to know कि भाई साहब उन्होंने स्ट्रीट्स में CCTV कैमरा का प्रोजेक्ट था, ठीक है. तो ये रास्तों में CCTV कैमराज इंस्टॉल होते हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टॉल करती है. मेरे दुकान में या किसी के पर्सनल घर में या किसी के पर्सनल बिल्डिंग में जो होता है वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करती है. लेकिन जितने भी आपके जैसे नाके हो गए, यहाँ पे जो CCTV होता है वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करता है. एक CCTV अच्छा कैमरा अगर आप देखोगे तो 2-3 हज़ार में आ जाता है. लेकिन मैंने वहाँ पे उस बिल में देखा एक CCTV कैमरा 22,000 का, ठीक है. तो ये बिलिंग हुई है, इसको कोई देख नहीं रहा है. 22,000 का कैमरा मतलब क्या हो गया, ठीक है. 22,000 का बहुत हाई एंड कैमरा हो गया, ठीक है. बट इट हैज़ बीन बिल्ड. तो ऐसा होता है कि हो सकता है उस CCTV का भाई साहब कीमत हो 2,000, ठीक है, लेकिन इसका 22,000 की बिलिंग हुई है. मतलब बहुत लोग हैं जो अभी वो एक कैमरा तो है नहीं, ऐसे भाई साहब पूरे एरिया में कम से कम नहीं करके 50 कैमराज इंस्टॉल हुए होंगे. तो हर में जो ये 20,000 का डिफरेंस आ रहा है ये मिल बांट कर खाया रहेगा जिन लोगों ने अप्रूव किया है, ठीक है. तो दिस इज अ लेवल ऑफ जोल दैट हैपेंस, ठीक है. इसीलिए आपका RTI है. RTI में लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. So in substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy that is attended to the needs and demands of the people and is free of corruption. तो यहाँ पे करप्शन हो सकता है. पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, ठीक है. So everybody should be knowing it. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population. तो ऐसा होता है डेमोक्रेसी में, कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं डिले से, ठीक है. लोग मतलब ताबड़तोड़ काम नहीं हो रहा, एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो चल रहा है, वैसे उस प्रोजेक्ट को लॉन्च होने में ही कई साल लगे. कितने सालों से सुन रहे हैं वो आपकी नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है. जब से आप पैदा हुए होंगे तब से सुन रहे होंगे, है ना. हैज़ इट कम? नो. तो देर आर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है. सो डेमोक्रेसीज कभी कभी लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, ठीक है. द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. मेजॉरिटी ऑफ ये नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, इसके चलते भाई साहब कितने फ्लैट्स बिक गए होंगे क्या मालूम. हर रियल स्टेट वाला बंदा अरे देखो कल ही प्लेन उतरेगा यहाँ पे, ठीक है. मतलब आपके घर तक, आपके घर के ऊपर ही शायद प्लेन उतर जाए, ऐसा बोलते हैं. और इससे कितने फ्लैट्स बिके हैं पता नहीं, ठीक है. ये सपना दिखाया जा रहा है लगभग 15 सालों से. कब होगा नहीं होगा या प्रोसेस में है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है. बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स. तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम, ठीक है. कोई बिल है, कोई आइडिया है, कोई मुद्दा है जो इन लाइन है, लेकिन कब इम्प्लीमेंट होगा क्या मालूम, ठीक है. सो दैट इज़ देयर एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन की डिमांड है कभी कभी इग्नोर हो जाती है. द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ ईविल. तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ सही सही चल रहा होगा, ठीक है. इतने सारे लोग, ठीक है. देखो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है बहुत बड़ा सेटअप है. 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज तो आपके लोकसभा में हो गए,
अभी आप जाओगे विधानसभा में, मतलब स्टेट में कितने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, फिर उसके अंदर आता है भाई साहब विलेज लेवल के, मतलब आप सोचो सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी तादाद ही इतनी है, उन इलेक्टेड मेंबर्स के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी होगी। तो पूरे आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का इतना बड़ा फोर्स है, हर लेवल पे झोल हो सकता है, हर लेवल पे करप्शन हो सकता है, जिसका हर्जाना किसको भरना पड़ता है, हम और आपको, कॉमन लोग, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ इविल, ऑल्दो इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ टाइम, हाउएवर इट इज नॉट फ्री ऑफ इविल। करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे करप्शन होते हैं। डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यस इट इज, ठीक है। तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लीगल गवर्नमेंट है, इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन। तो हो सकता है ये क्लीन ना हो, थोड़ा सा स्लो हो, बट इट इज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज वाई देर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, मतलब लोगों को मालूम है कि यही राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हालांकि इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इट इज नॉट फ्री ऑफ द इविल ऑफ करप्शन, इट हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ टाइम, ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीज, पॉपुलेशन साइज, भाई साहब ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो हम इस मामले में बहुत बुरी तरह से मार खा रहे हैं, ठीक है। हम आज की तारीख में वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक फेलियर होता है, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग अ डेमोक्रेटिक फेलियर। वी ऑल हैव, चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने लॉन्च किया, ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्टली इसको लॉन्च किया। वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इसको बहुत स्ट्रिक्टली लॉन्च किया चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी। आप पढ़ सकते हैं कि इस वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें थी। अगर किसी को एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको स्कूल में एडमिशन्स लेने में प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। ऑल्दो चाइना वॉज द लीडिंग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नाउ इट हैज़ बिकम सेकेंड एंड वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बिकम 10th और 11th एज वेल, ठीक है। यही चीज़ हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, हम सिर्फ लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए रह गए, ठीक है। अभी इंडिया में आते हैं जहाँ पे प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। करीबन आपके 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कुछ फोर्सफुल तरीके अपनाए गए, ठीक है। तो नसबंदी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको भाई साहब गांव खेड़े में ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाया गया, क्योंकि गांव खेड़े में भाई साहब लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, 5-6 बच्चे होते हैं। तो इसको क्या किया गया, मतलब सारे जितने भी मेल्स हैं उनको फोर्सफुली नसबंदी कराया गया, ठीक है। दे वेर फोर्सफुली इनकार्सरेटेड, ठीक है। तो अभी इनको क्या किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है और नसबंदी कराया जा रहा है, लोग उठाया जा रहा है। ये भाई साहब चैलेंज किया गया, नो इट कैन नॉट हैपन इन डेमोक्रेसी। तो इसके लिए भाई साहब हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, वी कैन नॉट फोर्सफुली इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। आज की तारीख में हम अभी टॉप पे आ गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हैड दिस बीन इम्प्लीमेंटेड तो ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गई भाई साहब, फिर लोगों ने चैलेंज किया कैसे आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं लोगों की इच्छाओं पर, वी आर अ फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये फेल हो गया, दिस वॉज फेल, गवर्नमेंट वॉज क्वेश्चन एंड वॉज फेल। तो आप देखो एक टाइप के गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया गया और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ भी डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस को बिना सोचे हुए इट यील्डेड रिजल्ट्स। इन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन लिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, क्वेश्चन किया गया, फिर से डिसीजन कैंसिल हुआ, ठीक है। और टुडे वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये फेलियर्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल, तो कंट्री का पॉपुलेशन साइज में जैसे हम देखो आज की तारीख में भी हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि भाई साहब पॉपुलेशन साइज कंट्रोल करो, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। कोई हम डोमिनेंट तरीके से इसको नहीं रोक सकते, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन क्या है भाई साहब, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन आज की तारीख में भाई साहब ग्लोबलाइजेशन कितना हुआ है, कितने भाई साहब फ्री मार्केट हैं हम, ठीक है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से क्या कोऑपरेशन हमको मिलता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, इकोनॉमिकली कौन कौन से प्रायोरिटीज हैं हमारे, कौन कौन से प्रायोरिटीज हैं, हमने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है क्या, हमने बिजनेस को बढ़ावा दिया है क्या, ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें 1990 तक, ठीक है, हमारे इंडिया में इकोनॉमिक टर्म्स में लाइसेंस राज था,
ठीक है। नाउ व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय लाइसेंस राज? आपको अगर एक सिंपल किराने की दुकान भी खोलनी हो ना, तो आपको भाई साहब सरकारी लाइसेंसेस लेते लेते आपके जूते घिस जाएंगे, ठीक है। तो मतलब बिजनेस जो है लोग करने से ही डरते थे। तो लोगों का मेन क्या था कि भाई साहब कैसे भी पढ़ लिख लो और सरकारी नौकरी में लग जाओ, बिजनेस में नहीं जाना है, बहुत तामझाम है उसमें, ठीक है। सो उसको बोलते थे हम लाइसेंस राज, ठीक है। तो जब 1990s में हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, हम आर्थिक अवस्था में बहुत गिर चुके थे, तो हमने वर्ल्ड बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई साहब, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यूएनओ का, कि हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन अगले 10 या 20 या 50 सालों में भी उस लोन को आप चुकता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाइए अपने पूरे स्ट्रक्चर में, तभी जाकर आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब ये बोला और लाइसेंस राज खत्म हुआ। अभी आप आज की तारीख में चेंज देखो क्या आया है, ठीक है। हर दूसरा इंसान आपकी उम्र में सोच रहा है कि जैसे मैं पढ़ाई लिखाई खत्म करूंगा मैं स्टार्टअप डालूंगा, ठीक है, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ प्लान कर रहे हैं लोग, ठीक है, बिकॉज दे आर सीइंग दैट इंडिया इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस। अदरवाइज टिल 1990 दिस वाज नॉट द सीन। लोग बिजनेस को लास्ट ऑप्शन रखते थे, ठीक है। पहले कोई सरकारी नौकरी में लग जाओ, उसके बाद देखेंगे बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपके पाबंदियां थी। अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुका है। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन से इकोनॉमिक प्रायोरिटीज रखती है? डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो कंट्रीज हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और जो कंट्रीज हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कोई बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो इज नेग्लिजिबल, ये बताया जा रहा है नेग्लिजिबल है, हार्डली कोई डिफरेंस है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई साहब कि ये क्यों है, फिर हम डिक्टेटरशिप भी भला है ना। तो देखा जा रहा है, जैसे आप देखोगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जितने भी हैं, आपका समझ लो जहाँ पे किंग का रूल चल रहा है बेबी, जैसे कतार हो गया किंग का रूल चल रहा है, वहाँ पे दुबई हो गया किंग का रूल चल रहा है। डेमोक्रेसी तो है नहीं, लेकिन क्या डेवलपमेंट नहीं है बस, डेवलपमेंट तो है, ठीक है। तो और हमारे यहाँ पे भी देखो, तो जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं और जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हार्डली कोई डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, ठीक है। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहाँ पे किंग का रूल चल रहा है, वहाँ पे वुमेन को लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये क्या वुमेन का ग्रोथ रुक रहा है वहाँ पे? यस, रुक रहा है बस, ठीक है। इज इट स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी? यस इट इज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मतलब अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लगभग हार्डली हमको कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। वी हार्डली सी एनी डिफरेंस। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर के टाइम पे जर्मनी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है। सो ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई साहब वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, ठीक है। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस एस्पेक्ट, ठीक है। तो कम से कम डिक्टेटरशिप से वो लेस ना हो, ठीक है। दे शुडंट बी लेसर देन डिक्टेटरशिप। चलिए, हम उसके साथ नहीं आ सकते लेकिन उससे कम भी नहीं हो सकते, ठीक है। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। डिक्टेटरशिप के पीछे नहीं होना चाहिए। Okay, reduction of inequality and poverty. When a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all the citizens of the country will have a share and lead better life? तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब होता है तो क्या पैसा सब में इक्वली बढ़ता है? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में सबका थोड़ा ना थोड़ा ग्रोथ तो होगा ही, ठीक है। सो देयर विल बी, तो डेमोक्रेसीज, डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज? Maybe not, but it is the only solution, ठीक है। Democracies are based on political equality. तो पहली बात तो political equality होती है, all individuals have equal weight in electing representatives. जैसे अगर हम देखेंगे हमारा क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है ना। What is universal adult franchisee? What is universal adult franchisee? या जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इसको हम क्या बोलते हैं? Any person who has attained 18 years of age is eligible to cast his or her vote during elections, whatever type of elections they are, whether they are general elections or whether they are midterm elections or whether they are by elections, ठीक है।
इसको हम बोलेंगे। और क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज द अदर स्कोप ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये तो +18 वाला हो गया मामला, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई साहब, तो 1% 1 वोट, ठीक है, एंड 1 वैल्यू, 1% 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। तो आपका भाई साहब धीरू भाई अंबानी हो या भाई साहब मुकेश अंबानी हो या रास्ते का कोई भिखारी हो, सबका एक ही वोट एक ही वैल्यू रखेगा। तो उन्होंने जब वोट दिया तो भी उनका एक ही वैल्यू होगा, रास्ते के भिखारी ने भी जब वोट दिया तो उसका भी एक ही वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि वो इतने पावरफुल इंसान है तो इसके लिए उनका 5 वोट गिना जाए, ठीक है। सो 1% विल बी एबल टू कास्ट 1 वोट एंड दैट 1 वोट विल हैव 1 वैल्यू, उसका एक वैल्यू होगा, ठीक है, ओके। सो ऑल इंडिविजुअल, तो आपने भाई साहब जब इलेक्शन के प्रोसेस में या डेमोक्रेटिक सेटअप के चुनाव के प्रोसेस में ही आपने इसको निर्धारित कर दिया, ठीक है। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes, तो ये होगा ही, ठीक है। आपके जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वही भाई साहब इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे। तो नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, ठीक है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव हो, ये डेमोक्रेटिक सेटअप का उद्देश्य है, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। ज्यादा करके डेमोक्रेटिक सेटअप में हमको डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम दिख रहा है, ठीक है। रिच और होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं, तो डिस्पैरिटी होती जा रही है, ठीक है। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, जितने भी आपके भाई साहब लोअर क्लास के हैं उनका इनकम डिस्प्लाइज हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड, आपका क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आपके बेसिक नीड्स हैं which are being missed by the lower strata of the society, people who are not earning that much of income, ठीक है। So this is being failed in democracy. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस कर रहा हो डेमोक्रेसी। जैसे आप देखोगे मिडिल ईस्ट में भले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी है लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं रहेगा। कास्ट इनइक्वालिटी, रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी, ये सब डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं रहेंगे। बातें हम कर सकते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सो वी डू नॉट सी मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ खासा अंतर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा हमको ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, ठीक है। क्लियर है? The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. लेकिन अभी स्कोप क्या है, ठीक है। जो पुअर है उनके लिए क्या स्कोप है? अभी देखो हमारा जो पुअर कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इनके लिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करेगा तो इनको वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए झक मार के हर पॉलिटिकल पार्टी को इनके लिए काम करना पड़ेगा, है ना, सो दैट दे डू नॉट लूज देयर ह्यूज वोटर बेस, ठीक है। सो और इसी के चलते इनका कम से कम बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड होंगी, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज विल बी प्रोवाइड। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट टू। तो पॉवर्टी या गरीबी को समाज से निष्कासित किया जाए, इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज उतने एग्रेसिव नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। 50% से ज़्यादा पॉवर्टी में है, ठीक है। पॉवर्टी मतलब जहाँ पे खाने पीने और रहने के वांदे हैं, ठीक है, ऐसा पॉवर्टी। और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, ओके। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। इस सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेटिक सेटअप एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, मतलब कोई भेदभाव ना हो, नो डिस्क्रिमिनेशंस विद रिगार्ड्स टू जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, और इवन इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। इसको लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग्स एथनिक पॉपुलेशन। तो हमने बेल्जियम का भाई साहब देखा है, श्रीलंका और बेल्जियम के कॉर्पोरेशन में हमने ये वाला आपने पढ़ा हुआ है ना, श्रीलंका और बेल्जियम का केस स्टडी लिया गया था।
कि कैसे श्रीलंका ने सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट किया जिसके वजह से इट रिजल्टेड इन द बिगेस्ट सिविल वॉर, ठीक है, एंड क्रिएशन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट ग्रुप दैट इज LTTE। और यहाँ पे भाई साहब बेल्जियम ने बड़े सूझबूझ के साथ अपने एथनिक पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी को हैंडल किया, ठीक है। बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमॉन्ग्स इट्स डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशन। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। तो डेमोक्रेसीज में भाई साहब प्रोसीजर्स होते हैं टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन होता है उसको कंडक्ट कराने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबल्स ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। तो टेंशंस सोसाइटी में रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है, मतलब हर एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति आक्रोश, इनसिक्योरिटी, ये सब रहेगा ही। इसको डेमोक्रेसी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, बाय प्रॉपर्ली। तो बेल्जियम इज द बिगेस्ट एग्जांपल। ओके, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। हो ही नहीं सकता कि सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। हम ह्यूमंस हैं, आज एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, कल दूसरा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देंगे हम भाई साहब। आज एक मुद्दा रिजॉल्व हुआ तो कल दूसरा मुद्दा आ जाएगा डिफरेंस के वजह से, ठीक है। तो ऑल सोसाइटीज विल हैव देयर ओन चैलेंजेस। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। We can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. तो इन differences को हम resolve कर सकते हैं और negotiate भी कर सकते हैं। Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democracy. तो democracy अगर भाई साहब social divisions को, differences को और conflicts को resolve कर सकती है legal तरीके से, so that is the ability, ठीक है। Example, Sri Lankan reminds us that democracy must fulfill two conditions. श्रीलंका में हमने देखा कैसा भाई साहब क्रैश हुआ, LTTE फॉर्म हुआ, क्योंकि वहाँ पे भाई साहब तमिल कम्युनिटी थी और सिन्हाला कम्युनिटी थी। सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट गवर्नमेंट का मिला लेकिन तमिल कम्युनिटी को नहीं मिला, जिसके वजह से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होते होते इट लेड टू द बिगेस्ट एवर सिविल वॉर दैट वाज फॉट इन अ कंट्री, ठीक है। And the biggest bloodshed was also seen. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion, ठीक है। मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी थी भाई साहब, वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी थी जिसको गवर्नमेंट ने ओपनली सपोर्ट किया, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट परमानेंट। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group, ठीक है। तो ये आपका कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की समस्या नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है उसकी समस्या है, ठीक है। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। तो अलग अलग पर्सन भाई साहब मेजॉरिटी फॉर्म कर सकते हैं। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time, ठीक है। हर एक इंसान, ठीक है, डेमोक्रेसी तभी होगी जब हर एक इंसान, ठीक है, मेजॉरिटी का लग्जरी एंजॉय करे, ठीक है। मेजॉरिटी लग्जरी अगर एंजॉय कर रही है तो हर एक इंसान मेजॉरिटी की लग्जरी को एंजॉय कर सके, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप और द मेजॉरिटी ग्रुप, ठीक है। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. तो अगर भाई साहब ऐसा कुछ सेटअप है जहाँ पे आप बाई बर्थ मतलब कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोपोजिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो भी बात कर लो भाई साहब, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, फ्रीडम की, ठीक है, फ्रीडम की और डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की, तो ये डेमोक्रेसी आपको दे सकता है, ठीक है। क्योंकि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेवलपमेंट जितना भी हो जाए, डिग्निटी और फ्रीडम सबके लिए नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, बहुत सारे कंट्रीज में आपको वुमेन आर नॉट गिवन लाइसेंसेस इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर दे एक्चुअली नो ड्राइविंग और नॉट, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर कंसिडरिंग देम एज अनफिट टू ड्राइव अ व्हीकल, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब यू आर नॉट ऑफ अ साउंड माइंड, इनडायरेक्टली आप यही बोल रहे हो, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, ओके। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, तो ये डेमोक्रेसी आपको एश्योरेंस देता है, ठीक है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस फॉर डेमोक्रेसी। फॉर सोसाइटीज व्हिच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, it is not simple matter to recognize that all individuals are equal.
तो ऐसे सोसाइटीज जो बहुत देर से बने हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, सारे इंडिविजुअल्स इक्वल हैं, ये इतना सिंपल भी नहीं है, बोलना सिंपल है लेकिन इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना, सो जैसे डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, एग्जाम्पल, मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो बहुत सारे वुमेन्स मूवमेंट्स हुए हैं और इन वुमेन मूवमेंट्स के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ है कि वुमेन ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड दे शुड बी अर्निंग देयर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है, इनको उनका रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलना चाहिए। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड हैव लीगल बेसिस बिकॉज, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर, ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड, तो कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या हो जाएगा, unacceptability would have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there। वहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में इसका कम चांसेस हैं, ठीक है। Democracy in India have strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। तो बहुत सारे कास्ट डाइवर्सिफिकेशन है हमारा, ठीक है, और ऐसा बहुत सालों से क्लासेस को ऐसे कास्ट में बांटा गया है, ठीक है, तो ये कास्ट के डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत लोग अत्याचार का और शोषित हुए हैं। ये डेमोक्रेसी इनको एक सबको इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करती है, ठीक है। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड अट्रॉसिटीज बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस, ठीक है, तो इनमें कोई मॉरल या लीगल, हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है या उनको अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन ये इलीगली हो रहा है, लीगली कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज हैपनिंग not within a democratic setup। Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights, ठीक है, okay। Are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by a monarch or military religious leaders, ठीक है, तो अगर आप किसी भी जनसाधारण को पूछेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, मोस्टली दे विल ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, मोस्टली दे विल ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी बट नॉट सो, लेकिन कुछ इंस्टेड ऑफ मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स दे विल ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन जब डेमोक्रेसी को एक्चुअल प्रैक्टिस में हम उतारते हैं तो मे बी पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड, सो वी फेस अ डिलेमा क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। तो जो अचीव हुआ है या नहीं अचीव हुआ है अंडर दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है इसीलिए हम कुछ, और आउट इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग पोजीशन दैट सो दैट दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, जो ज़्यादा करके डेमोक्रेसी में नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्विक होते हैं डिसीजन मेकिंग में और उसके इंप्लीमेंटेशन में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आर नॉट वेरी क्विक and implementing the basic rules, ठीक है। If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regimes in these respects. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt और मोर सेंसिटिव टू द पीपल, ठीक है। तो जितने भी आपके नॉन डेमोक्रेसीज हैं उसमें करप्शन कम है ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी में भी करप्शन है, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में भी करप्शन है। डेमोक्रेसी स्लो है, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप्स आर फास्टर, ठीक है। हाँ, डेमोक्रेसी में आपके जो पर्सनल और इंडिविजुअल राइट्स हैं उनका कभी भी उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में ये होगा, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स as the Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives elected by them. ये common forum है कि हम उन्हीं को अपना लीडर चुने जिनको हमको लीडर चुनने का हक दिया गया, ठीक है। They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored, ठीक है।
तो ये एक आउटकम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce development? Yes, they should be producing development. ठीक है? Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. तो failure है, democracy में loopholes हैं, डेमोक्रेसी में भी करप्शन है, डेमोक्रेसी में भी वायलेशन ऑफ राइट्स है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी फ्री से, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी बड़ी तादाद हो जाएगी उतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, और जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की मानसिकताएं होती हैं, तो उसमें करप्शन होना संभव है। ठीक है, इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप्स for the 50 years between 1950 to 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, कि डिक्टेटरशिप जो है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप्स हैं, जहाँ पे भाई साहब मोनार्कियल रूल है, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे हैव शोन जनरली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, ये हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि कोई भी चीज जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही हो उसको गवर्नमेंट ताबड़तोड़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, उसको टाइम लग जाता है। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ताबड़तोड़ डिसीजन हो जाता है। ठीक है, ये एक चैलेंज हमारे लिए रह जाता है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, इस कारण से ही हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर अ लिटिल बैकवर्ड, हाउएवर द अदर पॉजिटिव आउटकम्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन इक्वल इन इक्वालिटीज। ठीक है, तो आपके जितने भी पॉलिटिकल एरेना में हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एरेना में सारे लोगों को इक्वल माना गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनइक्वालिटीज ड्यू टू जेंडर, ड्यू टू कास्ट, ड्यू टू रिलीजन, all people are considered to be equal. ठीक है, people in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. food supplies के लिए भी भाई साहब ये dependent है rich countries को। ठीक है, we have seen in the earlier chapter how democracies accommodate various social divisions. Democracies throughout the world have recognized this at least in principle. ठीक है, this has been achieved in various degrees in various democracies. That does not mean that women are actually always treated with respect. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है सारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, यहाँ पे भी भाई साहब होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। ठीक है, जैसे अगर विदिना ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट हुआ, तो शी हैज़ द राइट टू क्वेश्चन आरटीओ व्हाई इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। क्या ड्राइविंग स्किल्स नहीं है इसलिए रिजेक्ट हुआ? अगर ऐसा है तो हो सकता है, लेकिन अगर बिकॉज शी इज़ अ वुमन शी हैज़ बीन डिनाइड अ ड्राइविंग लाइसेंस, शी कैन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में तो इसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रूल ही है, आपको ड्राइविंग आती हो या ना आती हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो हाँ, प्रिंसिपल जो है, आप लीगली और मॉरली किसी चीज को चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें ठीक ठाक इंप्लीमेंट हो रही हैं, वुमेन के अगेंस्ट में कुछ भी उपद्रव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वुमेन चैलेंज तो कर सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो इफ विदिना इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप, शी कैन चैलेंज इट इफ शी हैज बीन नॉट ग्रांटेड अ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इन स्पाइट ऑफ हर नोइंग ड्राइविंग, बट शी कैन नॉट डू द सेम इन मिडिल ईस्ट कंट्री। मतलब वहां पर तो चैलेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर लॉ ही है। ठीक है, expectations from the democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is more distinctive about the democracy is that its examination never gets over. Democracy को हम हर समय examination पे ही रखते हैं। ठीक है, as democracy passes one test, it produces another test. एक और test हो जाएगा वैसा। As people get some benefits of democracy, they also ask for more and want to make democracy even better. तो डेमोक्रेसी में हर समय लोगों के इनपुट्स आते ही रहेंगे, क्योंकि ये एक ओपन सेटअप है। ठीक है, this is basically an open setup. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many more complaints. ठीक है, तो उनके भाई साहब और भी complaints आएंगे। The fact that people are complaining in itself is a testimony of the success of democracy. Complain आप कर रहे हैं, लोग हमेशा ज़्यादा करके डेमोक्रेटिक सेटअप में कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। कब करेंगे आप कंप्लेन? जब आपका कंप्लेन सुनने वाला कोई हो, है ना,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर, जैसे अगर मैं बोलूं कि कहीं पे क्राइम रेट्स बहुत हाई हैं, लेट्स से एक कोई सिटी है ए और एक कोई सिटी है बी, यहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत हाई हैं और यहाँ पे क्राइम रेट्स कम है, तो कौन सा सिटी ज़्यादा सेफ होगा? बी। ओके, अभी हम आते हैं इस पे कि क्राइम रेट्स होते क्या हैं। क्राइम जिसका आप FIR लिखाते हैं, है ना, वो आपका क्राइम रेट है। आप पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्राइम रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर कोई क्राइम हुआ जिसका किसी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं किया तो वो क्राइम है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इस सिटी में पीपल आर फीलिंग फ्री टू वॉक अप टू द अथॉरिटीज एंड रिपोर्ट अ क्राइम। Maybe in this city the same amount of crime is happening or maybe even higher, but they are not feeling safe to report that crime. अब बताओ भाई साहब कौन ज़्यादा सेफ हुआ? ठीक है, then A will be more safer. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, so अगर कोई कंप्लेन कर रहा है, लॉज कर रहा है, तो इसका मतलब वो फील फ्री कर रहा है, वो सेफ फील कर रहा है, इसकी वजह से वो कंप्लेन लॉन्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान इज अ कंट्री विच हैज द लोवेस्ट क्राइम्स रिपोर्टेड अगेंस्ट वुमेन। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, जहाँ पे भाई साहब लोग बंदूक लेकर हाथ में घूम रहे हैं खुल्लम खुल्ला, क्या वहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि इट विल हैव द लोएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन? मे बी वुमेन आर नॉट फीलिंग सेफ टू रिपोर्ट द क्राइम्स दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट देम। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर कहीं पे कंप्लेन हो रहा है तो कंप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल को मिल रही है। ठीक है, इट इज गुड। It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It transfers people from the status of a subject into that of a citizen. तो subject नहीं रहते हैं भाई साहब, they basically get their rights, they realize it and exercise it as well. ठीक है, most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self interest. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब। माई सजेशन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये नेशनलिज्म, ऑल दीज आर बेसिकली आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इंडिविजुअली हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी भले ही आपका एक स्लो सेटअप है, भले ही यहाँ पे भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन स्टिल डिग्निटी, रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज मेंटेन। इन अदर फॉर्म्स ऑफ सेटअप्स दैट इज नॉट मेंटेन। ठीक है, सो दिस वुड बी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद आपका क्या बाकी रहता है? ग्लोबलाइजेशन। अब जरा फॉरवर्ड करेंगे भाई साहब, ग्लोबल